سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء بڑا ہی پیارا کلام ہدایت بخشش میں اسے بھی شامل کر دیا گیا ہے مکتبۃ المدینہ سے، اور یہ ان دو حصوں کے علاوہ کے کلاموں میں سے ہے۔ ہدایت بخشش کے سابقہ حصہ اول، حصہ دوم کے علاوہ بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ نے، المدینہ العلمیہ نے شفقت فرمائی ہے، اور کئی جو متفرق کلام تھے انہیں بھی یہاں پر شامل کیا ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے امام احمد رضا کے نعتیہ مجموعے کو بنام ہدایت بخشش پرائز دے کر خرید فرما سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج قبلہ استاد العلماء آصف مدنی صاحب، ہمارے عمران مدنی صاحب اور ہمارے فضیل رضا عطاری بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو آگے بڑھائیں گے، عمدہ عادتیں امام احمد رضا کی۔ ہمارے سلمان مدنی بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے والے، یہ بھی آج موجود ہے ہمارے پروگرام میں، لیکن کچھ وجوہات پر غالباً ان کے شہزادے کی طبیعت کی ناسازی بھی وجہ بنی ہے، تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کے بیٹے کو صحت دے، عافیت عطا فرمائے۔ امام اہل سنت کی پیاری پیاری عادتیں، اس کی طرف جانے سے پہلے حضور کچھ اس پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ عادت کیا ہوتی ہے، انسان کی عادتوں کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اصل میں عادت تو یہ ہے کہ انسان جو عمل بار بار کرتا ہے نا، وہ عادت ہیں۔ اچھا اب کچھ گڈ ہیبٹ ہوتی ہیں اور کچھ بیڈ ہیبٹ۔ جی، تو اچھی عادتیں انسان کے کردار کا پتہ دیتی ہیں کہ انسان کے کردار کو سنوارتی ہیں، اس کو بلڈ کرتی ہیں، صحیح۔ اور جو بیڈ ہیبٹ ہیں یہ انسان کو ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ اور یہ بھی انسانی نفسیات ہے کہ انسان جس حالت میں ہوتا ہے یا تو اس حالت میں رہے گا، کانسٹنٹ رہے گا، صحیح، مستقل، یا پھر نیچے آئے گا، ڈیگریڈ ہوگا، اور یا پھر اپ گریڈ ہوگا۔ تو اس کے اندر اب وہ عادتیں کون سی اپنا رہے ہیں؟ اچھی عادتیں اپنائے گا تو اپ گریڈ ہوگا، اور اگر بری عادتیں اپنائے گا تو ڈی گریڈ ہوگا۔ تو جو اچھی عادتیں اپنائے ہوئے ہیں وہ اگر قائم رکھے گا، مزید اضافہ نہیں کرے گا، تو کم از کم وہاں تو رہے گا جہاں پر ہے۔ اور پھر عادتوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ عادتیں ہم دوسروں سے دیکھ کر سیکھتے ہیں، صحیح، موٹیویٹ ہوتے ہیں، پرسویٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب موٹیویشن بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی تو اپ گریڈ ہوگا نا۔ تو موٹیویشن کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن شخصیات کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمارے لیے ہمارے بزرگان دین کی زندگی میں بہت ساری ایسی موٹیویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قول کے ذریعے بالقول اور ایک بالفعل۔ صحیح، یعنی آپ نے سپیچ کے ذریعے سنی، یعنی اس نے ورڈنگ کی، کچھ لکھا، کچھ بولا، تو یہ بالقول ہوگی۔ اور اس نے کچھ کیا، بولا نہیں آپ کو، صحیح، اب آپ نے اس کو کرتے دیکھ کے انسپائریشن لے لی کہ میں بھی ایسا کروں، وہ اچھا کام ہی ہوگا بزرگان دین میں سے۔ صحیح۔ ہمارے لیے تو ہیں ہی وہ رول ماڈل۔ اور اب دیکھیے کہ انسان بڑا بنتا کب ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے کام کرے، بڑے بڑے بول بولے، اس وقت بڑا بنتا ہے۔ انسان اس وقت بڑا بنتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عادتوں کا موضوع آپ نے بنایا، اور وہ ہیں عمدہ عادتیں، امداد، یعنی بیسٹ کہہ لیں، ایکسیلنٹ کہہ لیں، ہیبٹ ہیں۔ صحیح، تو یہاں تو سوچنے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ ہیں اچھی یا نہیں، یہاں تو اچھی ہی اچھی ہیں، ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے رضا اچھے ہیں۔ بے شک۔ اچھا حضور، اب ہیبٹس اور نیچر میں کوئی فرق ہے؟ نیچر اور ہیبٹس، عادت اور فطرت۔ ہاں، عادت وہ ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، اور نیچر وہ ہے کہ جو آپ کی طبیعت ہے۔ فطرت کس کہہ سکتے ہیں؟ ایک انسان ہے کہ وہ اگر نیچرلی ایکٹ کرتا ہے تو بعض آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ کہ وہ ان کو سوئی بھی چبھ جائے نا، عمران بھائی، وہ کہتے ہیں وہ میرا نیزہ لگ گیا ہے، وہ نیزہ میں تیر لگ گیا ہے۔ جی جی، یعنی ان کو اگر چھوٹی سی سوئی چبھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کینچی سے کسی نے کاٹ دیا ہے، تو یہ ایک مزاج، یہ ایک طبیعت کا کام ہے۔ صحیح، اور اس حوالے سے بڑا ڈر لگتا ہے بعض اوقات کہ طبیعت کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، وہاں سے ہٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، یہ ماننا آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی تمہیں یہ بولے کہ انسان اپنی طبیعت چھوڑ گیا ہے، فطرت چھوڑ گیا ہے، تو یہ ماننا مشکل ہے۔ لیکن عادات کے مسائل میں اب طبیعت کیسے بدلتی ہے؟ لوگ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام شروع کر دیتے ہیں۔ عادت کا بدلنا بھی اس کو فطرت کا بدلنا کہیں گے یا عادت کا بدلنا؟ اصل میں
मैं आदत और तबीयत का जो फर्क है ना वो वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक, क्योंकि उस तबीयत को बदलने के लिए आपको आदतें अच्छी अपनानी पड़ेंगी। सही, क्योंकि उसकी तबीयत में अगर लालच है, उसकी तबीयत में अगर हसद है, उसकी तबीयत में अगर तकब्बुर है, तो क्या वो ही चीज़ वो आखिर तक लेके जाएगा और फिर कब्र में उतर जाएगा, या उसको बदलेगा भी? अब वो कुछ अच्छी आदतें अपनाएगा। हसद का इलाज उसका खैर खाई से होगा कि हसद किसी के बारे में अगर आया कि इसको ये नेमतें मिली क्यों, ये क्यों आगे बढ़ गया, तो अगर वो इस दुआ पर आ जाए कि रब ताला इसकी नेमतों में और इजाफा कर, अब ये खैर खाई होगी, तो ये उसको आदत अपनाई। तो ये तबीयत और आदत में इस्तिलाही फ़र्क जिसे कह लें ना कि एक वो एतिबारी फ़र्क जिसे कहते हैं वो है। सही, क्योंकि रज़ात के मसले बयान हुए ना, उसमें ये आया कि दूध जो बच्चा पीता है 2 साल तक उसको दूध पिला सकते, औरत का, सही, माँ का या दूसरी औरत का 2 साल तक इजाज़त है, उसके बाद मना है। लेकिन 2.5 साल की मुद्दत के अंदर किसी ने पिला दिया, अब रज़ात की हुर्मत साबित हो जाए। साबित होती है। उसमें फुकाहे कराम ने जो दलील कायम की ना, और ख़ासकर इमाम ज़ुफ़र ने जो, उन्होंने कहा कि 1 साल तबीयत को बदलने के लिए काफ़ी होता है। तो 1 साल के अंदर 4 मौसम या मुख्तलिफ मौसम आते हैं, तो वो बच्चा जो दूध के ऊपर पल रहा था, उसकी हड्डियाँ, उसका गोश्त दूध से बन रहा था, अब वो जब 2 साल के बाद दूध छोड़ दिया उसने, तो 1 साल के अंदर 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 वो क्या आ जाएगा, अपनी दूसरी खुराक पे आ जाएगा। इसी तरह अगर इंसान अच्छी आदतें अपनाए तो वो अपनी बुरी तबीयत से जान छुड़ा सकता है। शर्त ये है कि वो तबीयत से छुड़ाने के लिए फिर गुड हैबिट की तरफ जाए, बेस्ट हैबिट की तरफ जाए, अच्छी आदतों की तरफ जाए। अगर उसने बुरी आदतें अपनाई तो वो तबीयत चूंकि साथ में मिली हुई है, अब तबीयत के साथ यानी जो कहते हैं ना वो मैच करना, और तबीयत के साथ जो मैनेजमेंट है उसकी, वो क्या है, बुरी आदतों की। तो जब आप पेट्रोल का काम क्या, आग लगाना, सही, तो जब आप आग पे पेट्रोल छिड़केंगे तो होगा क्या, आग बढ़ेगी जी। और अगर पानी आप डालेंगे आग पे, आग बुझेगी। यानी अगर तबीयत पे खराबी है, फसाद है, तब भी आप उसकी फसाद को कम इस तरह कर सकते हैं पानी डाल कि आप अच्छी आदतें अपनाएं। हसद, जैसे किसी की तबीयत में हसद भरा हुआ है, मिजाजन, तो अब वो उसका इलाज यूं करे कि वो हसद तो आ रहा है लेकिन उससे बचते हुए दुआ करे महसूद के लिए, और इस तरह से उससे बचता रहे। इसी तरह और भी बुराइयां जी। अब आज आला हजरत पे रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो उम्दा आदतें हो, एक कौल का जो कौल जब मैंने पढ़ा ना, मैं चाहता हूँ यही सवाल हमारे इमरान भाई, फुजैल भाई भी इस पर कुछ रोशनी डालें ताकि फिर हम आला हज़रत की जात पर आ जाते हैं। फुजैल भाई, इंसान की आदत का उसकी कैरेक्टर पे क्या असर पड़ता है, किस तरह इसको आप बयान फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त सिलसिला करने पर आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यूँ समझिए कि आपका चुनाव और इंतखाब है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाए और आपको हकीकी मायने में फैज़ान आला हज़रत और फैज़ान इमाम अहमद रज़ा ये नसीब फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। अशफाक भाई, अर्ज़ ये है कि जब आदत का तस्करा किया जाता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई फलाने की जो है ना ये बचपन से ये आदत है, ठीक है ना। तो पता ये चलता है कि आदत का जो मामला है ना वो कंटिन्यू चल, बहुत बचपन से शुरू हो जाता है। अरस्तु का ये कहना है, ये तकरीबन वही बात है कि जो उस्ताद साहब ने फरमाया, उस्ताद आसिफ साहब ने, वो यही है कि हम जो कुछ बार बार करते हैं हम वही होते हैं। अच्छा, आला कारकर्दगी एक नहीं बल्कि यानी कि एक आदत के अंदर एक चीज़ शामिल है। इसको आप एक, अगर मैं एग्जांपल देकर ये समझाऊं कि मिसाल के तौर पर बचपन से किसी की आदत होती है किसी को तंग करने की, किसी को छेड़ने की। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ बच्चे जो है वो बचपन में घंटियां बजा के भाग जाते हैं, ठीक है। तो बाज़ लोग कहते हैं यार ये बचपन से इसकी आदत देखिए ये लोगों को घंटियां सताता है। ये लोगों को ये तंग करता है, मस्तियां करता है, ठीक है ना। अब लोग बहुत आगे जाकर भी उसकी इस बात को याद करते हैं। सही, सुभान अल्लाह। यहाँ पर अगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की आदतों को देखें तो क्या बात है, यानी आपकी बचपन से निगाहें नीचे रखने की आदत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आपने 4 साल की उम्र में कैसा जबरदस्त फसीह बलीग कलाम फरमाया कि पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है और उसके बाद सितर बहकता है।
आंखों की कैसी हिफाजत, यानी कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अर्ज किया। अब ये आदतें यूँ समझे कि ये इंसान के कैरेक्टर को ये बिल्डअप करती हैं। अच्छी आदतों से आदमी अच्छा होता है, अच्छा कहलाता है। मगर ये बात याद रखिए कि अगर सपोज कोई आज चैनल देख रहा है और उसने कहा कि यार मेरी तो वाकई बहुत सारी ख़राब आदतें हैं, तो क्या मैं ठीक नहीं हो सकूंगा? तो इन्होंने जिस तरह फ़र्क वाज़े कर दिया ना कि फितरत में तो ठीक है बहुत प्रॉब्लम है कि यानी ये एक मामलात हैं, मगर आदत बदल सकती है। यानी आदमी चाहे तो कसब करके, कोशिश करके भी बुरी आदतों को निकाल सकता है। किसी की थोड़ी कोशिश लगेगी, किसी को ज्यादा कोशिश लगेगी, बिल्कुल। मगर इसके लिए जो है ये एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। अगर एक शख्स गुस्सीले मिजाज लोगों के साथ रहेगा तो वो चेंज है कि उसकी फितरतन वो ठंडा था, मगर उसकी आदत गुस्सा करने की हो जाएगी। एक शख्स गुस्सीला मिजाज का होगा मगर वो बैठा ठंडे लोगों के अंदर, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, तो अब उसकी आदत जो है ये बेहतर हो जाएगी। तो आदत ये तब्दील की जा सकती है, मगर ये जरूर है कि इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। बिल्कुल। और मुसलमान की जो आदत है वो तो उसको देखना चाहिए कि मेरी तमाम आदतें शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। जहाँ कोई चीज़, कोई आदत शरीयत से टकरा रही है, शरीयत के बाहर उसे ले जाती है, तो उसे अब फ़ौरन ब्रेक लगाना चाहिए कि वो दोज़ख की तरफ कहीं ना बढ़ता चला जाए। इमरान भाई, आदत औद से निकला है, औद यानी लौटना। बंदे को चूंकि उसकी तरफ, उस काम की तरफ बार बार लौटता है, बार बार लौटता है, बार बार वो करता है, इसलिए इसको कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आदत का लफ्ज़ जो है वो अरबी के एतबार से औद से निकला है। आदत को आदत कहते ही इस वजह से हैं कि वो बार बार पलट कर आती है इंसान की ज़िंदगी। जैसे ईद है वो भी औद से है कि बार बार पलट कर आती है। तो बहरहाल ज़िंदगी में जो काम, जैसे कि उस्ताद साहब ने फरमाया कि इंसान बार बार किया करता है और कई मरतबा ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो उसे आदत कहा जाता है। अब उर्दू के अंदर सलमान भाई ये कहा जाता है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। कौन है सलमान भाई? अशफाक भाई। असल में सलमान भाई के साथ कुछ ज़्यादा मौका मिलता है ना। आप तो इशारों में आपकी भी आदत है ना? ये भी एक आदत है, ये भी एक आदत है। ठीक है, सलमान भाई के लिए दुआ है, अल्लाह उनको आमीन आसानी फरमाए। उनके लिए, इनके शहजादे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो अशफाक भाई, बात यह है कि उर्दू में कहा जाता है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्ल, यानी अगर आदतें किसी बच्चे की अच्छी हों तो बंदा ये देखने से गुमान कर सकता है, ये सोच सकता है कि हाँ, इसके बड़ों की आदतें अच्छी हैं, ये किसी मुहज्जब घराने में से है, ये किसी अच्छे घराने में से है, ये पढ़े लिखे खानदान में से है, यूं कहा जा सकता है। अगर अच्छी नेक आदतें बच्चे में नजर आती हैं तो यूं कहा जा सकता है कि भाई ये किसी नेक घराने में से है, किसी जो है वो अल्लाह वालों के घरानों में से है, यूं कहा जा सकता है। और अगर किसी बच्चे की आदतें जो है वो बुरी नज़र आती हों तो यूं कहा जा सकता है कि शायद इनके बड़ों की आदतें ऐसी हों। हकीकी तौर पर लाजमी नहीं है कि ये आदतें वैसी ही हों, हो सकता है। बहरहाल आदतें नस्लों का पता देती हैं। हम अगर अपने ख़ानदान का नाम अच्छा बाकी रखना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। अब बहरहाल जहाँ तक अच्छी आदतों और बुरी आदतों का ताल्लुक है, गुड हैबिट्स हैं और बैड हैबिट्स हैं, तो देखें बाज़ लोग तो गॉड गिफ्टेड हुआ करते हैं कि ना चाहते हुए ही उनके अंदर फितरी तौर पर जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी आदतें हुआ करती हैं। बड़ा जो है वो लतीफ़ कलाम किया करते हैं, बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमाया करते हैं, और जब बोलते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे मुँह से जो है वो फूल झड़ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह की तरफ से उनको ये अता हुआ करती है। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आदतें कुछ बुरी हुआ करती हैं। अब ऐसे लोगों को जो है कुछ मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों की तरफ आने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बुरी आदतें इंसान के अंदर अगर मौजूद हैं तो उसके नुकसानात, उसकी बुराइयां, बंदा उसका मुताला करे, उसके बारे में नॉलेज हासिल करे, अपने जहनो दिमाग के अंदर बिठा ले, अपने आप को ये रियलाइज़ करवा ले कि वाकई मेरी फला आदत जो है वो गलत है और मैंने इससे छुटकारा पाना है। जब हमारे जहन को ये पैगाम पहुंच जाएगा, क्योंकि जहन हमारा वो काम करता है जो इसको दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर में हमने जो टाइप कर दिया ना, कंप्यूटर वही लिख कर दिया, जी कंपोज कर दिया तो कंप्यूटर में वही आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे दिमाग को हमने जो पैगाम दे दिया तो दिमाग वही काम करेगा। दिमाग खुद से कुछ नहीं सोचता, बल्कि इंसान अपने दिल से जो दिमाग की तरफ ख्यालात को मुंतकिल करता है तो दिमाग फिर वैसे ही काम किया करता है। जो लोग मायूस रहते हैं तो वो मायूसी की तरफ ही जाते हैं। हालांकि दिमाग तो मायूस नहीं होता, लेकिन क्या है कि दिल के अंदर मायूसी आई, वो दिमाग की तरफ गई, बंदे ने जैसा सोचा वैसा हो गया। इस पर वो हदीस मुबारक भी सादिक आती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अना इंद ज़न्नि अब्दी भी,
کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو جیسی بندے کی اگر بری عادتیں ہیں، پہلے تو اپنے آپ کو ریئلائز کر لیں، اپنے آپ کو یہ جو ہے نا سمجھا دے کہ واقعی بھائی میرے اندر جو یہ بات ہے، جو یہ عادت ہے، یہ غلط ہے۔ جب یہ ریئلائز ہو جائے گا، بندہ اس کو سمجھ لے گا، سیریس لے لے گا اور سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل کرے گا، تو پھر وہ بری عادت چھوڑنے پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اب بری عادت چھوڑنے کے لیے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر سگریٹ چھوڑنی ہے اور سگریٹ پینے کی اللہ نہ کرے اگر عادت ہے، اور پھر بندے کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی دوستوں کے ساتھ ہو کہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ سگریٹ کی کش لگا رہے ہیں، اور پھر بندہ کہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا، تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اسے اپنی جو ہے گیدرنگ تھوڑی تبدیل کرنی چاہیے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے کہ جو یہ نہ کرتے ہوں۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے بیان کیا ہے۔ تو یوں اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری عادتیں جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی عادتیں جو ہے وہ دنوں میں چینج ہو جایا کرتی ہیں، بعض لوگوں کی عادتیں ہفتوں مہینوں میں چینج ہوتی ہیں، بعض کی جو ہے وہ سالوں میں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ عادت چینج نہیں ہو سکتی، عادت چینج ہو سکتی ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ اسٹڈی کریں تو بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات ایسے نظر آ جائیں گے کہ بندے نے بالکل اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ انقلاب آ جاتا۔ جی، کوئی ایک عادت چینج کرنا ایک بات ہوتی، لیکن بالکل ہی اپنے آپ کو چینج کر دیا۔ ہمارے اسلام کی تاریخ میں، دیگر باتوں میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ خلیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری عادتیں ہو بہتر، بنو سن